तो 60 क्वेश्चंस ऑफ जीके, ठीक है, जो आए नहीं, सॉरी 50 क्वेश्चंस ऑफ जीके। आता है सो गुड, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is the coldest desert in the world? Which is the coldest desert in the world? That is Antarctica. Antarctica is the coldest desert in the world, but Sahara is the hottest desert in the world. ठीक है, तो लार्जेस्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट इज अंटार्कटिका, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा, इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट इज थार। ओके, सो कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका है। क्लियर? नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहते हैं? दैट इज कोशी, कोशी रिवर, दैट इज कोशी रिवर। Okay, then ready for the next sum? Next question. What is the study of weather called? What is the study of weather called? That is meteorology. Meteorology, it's called meteorology. Okay. Next question. Which imaginary line divides India into almost two equal halves? Two equal halves में इंडिया को कौन सी imaginary line divide करती है? Then it's the Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer divided the India into two equal halves. Now the next question, that is, which country is known as the land of white elephant? Land of white elephant किस country को कहा जाता है? ठीक है, land of rising sun, that is Japan, but land of white elephants क्या हो? That is Thailand. Thailand को land of white elephants कहा जाता है। Land of five rivers, that is Punjab. Land of rising sun, that is Japan. Okay. Now, what is the name of the highest plateau in the world? That is Tibetan Plateau. Tibetan Plateau is the highest plateau in the world. It is also called the roof of the world. Okay. So अगर क्वेश्चन पूछ दे what is the name of the roof of the world, which plateau is known as the roof of the world, तो उसका आंसर भी तिब्बतन प्लेट्यू होगा। ओके, नेक्स्ट, which is the least populated state in India? इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है? दैट इज सिक्किम। Sikkim is the least populated state in India. Okay. Now, in which ocean is the Mariana Trench, the deepest point on earth, located? Mariana Trench जो है वो किस ओशन में लोकेटेड है? Then that is Pacific Ocean. Pacific Ocean, there is a Mariana Trench. It is also called the deepest point on earth. ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो which point is the deepest point on earth? The answer is Mariana Trench. And Mariana Trench किस ओशन में? That is Pacific Ocean. Clear? Next, which country has the longest coastline in the world? Longest coastline in the world किस कंट्री के पास? The answer is Canada. Canada has the longest coastline in the world. And India में longest coastline किस स्टेट के पास है? That is गुजरात. इंडिया का में सबसे smallest coastline किस स्टेट के पास है? That is गोवा. The smallest state in India, that is Goa. The largest state in India, that is Rajasthan. ठीक है, तो ये बेसिक्स जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप और भी अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। नाउ, व्हाट इज द डेंस लेयर ऑफ प्लांट लाइफ कॉज्ड बाय द क्राउन्स ऑफ द ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट कॉल्ड? डेंस लेयर ऑफ प्लांट लाइफ कॉज्ड बाय द क्राउन, दैट इज कैनोपी। कैनोपी। ओके, नाउ,
Who was the first female ruler of the Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट फीमेल रूलर कौन थी? दैट इज रजिया सुल्तान. ठीक है, दैट इज रजिया सुल्तान. Which ancient Indian university was a great center of learning and was located in Bihar? Ancient Indian university was a great center of learning and was located in Bihar. That is Nalanda University. Nalanda University is the ancient Indian university. Clear? Next. Who is known as the Iron Man of India? ये आसान क्वेश्चन ही आप लोगों को पता होना चाहिए. दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. इन्हीं के ऊपर बनी हुई है द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी. ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं की है. क्लियर? नेक्स्ट. Which monument was built by Emperor Akbar to commemorate his victory over Gujarat? That is Buland Darwaja. Buland Darwaja. Okay. Next. Who is considered the chief architect or father of the Indian Constitution? ये आसान है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर या चीफ आर्किटेक्ट कौन थे. दैट इज भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर B.R. Ambedkar. He is the chief architect and the father of the Indian Constitution, both. What is the minimum age required to vote in India? So minimum age required to vote in India, that is 18 years, and minimum age to stand in an election of Rajya Sabha, that is 21 years. In a Lok Sabha, that is 25 years, and for the president, that is 35 years. ठीक है, तो हर अलग अलग है. 18 फॉर वोटिंग, एंड राज्यसभा में वोटिंग पाने के लिए कितने, इलेक्शन में खड़े रहने के लिए कितनी एज चाहिए? 21 इयर्स. लोकसभा में 25 इयर्स, और प्रेसिडेंट के उसमें 35 इयर्स होनी चाहिए. ठीक है. नाउ, which city was the capital of the Mughal Empire before Delhi? That is Agra. Okay. Yes. दिल्ली कैपिटल होने से पहले मुगल एम्पायर की कैपिटल आगरा थी. नेक्स्ट. हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले अभिज्ञान शकुंतलम? अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत प्ले है, वो किसने लिखा था? द नेम इज कालिदास. कालिदास जी ने लिखा था संस्कृत प्ले अभिज्ञान शकुंतलम. Now, the next question. What does the blue wheel Ashok Chakra in the center of the Indian national flag represent? आप सबको पता है कि तीनों जो कलर्स होते हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ठीक उसी तरह अशोक चक्र भी कुछ रिप्रेजेंट करता है. वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज द व्हील ऑफ द लॉ, धर्मा और प्रोग्रेस. ओके, द व्हील ऑफ द लॉ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अशोक चक्र. ओके. Now, next. Which gas do plants absorb from the atmosphere during the photosynthesis? The photosynthesis के टाइम पे plants कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं? That is CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान, रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. दिन में ये सिवाय एक बरगद, पीपल, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 80% टाइम में, इवन शायद पीपल ऐसा एक पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है. ठीक है, बट मैक्सिमम जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ठीक है. व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड? दैट इज सॉल्ट, टेबल सॉल्ट. यस, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें नमक जो पड़ता है, दैट इज नोन एज द सोडियम क्लोराइड, NaCl. Now, which organ in the human body filters waste from the blood? ब्लड से जो फिल्टर करता है वेस्ट को, वो कौन सा ऑर्गन होता है? दैट इज किडनी. ठीक है. फ्रॉम द ब्लड फिल्टर्स, जो वेस्ट होते हैं वो फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है. ठीक है. नाउ,
What is the boiling point of water in Celsius? Boiling point of water in Celsius. So boiling point of water in Celsius, that is 100 degrees Celsius. 100 degree is the boiling point of water, and the freezing point, that is 0 डिग्री सेल्सियस. अब फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है? फ्रीजिंग का मतलब जब वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट. इस पॉइंट के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. एंड बॉइलिंग पॉइंट, द पॉइंट वेयर द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इन द वाटर वेपर्स. ओके, वाटर वेपर्स में जब वो कन्वर्ट होना शुरू हो, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना, दैट इज 0 डिग्री, एंड boiling point is 100 degrees Celsius. Now, which plant in our solar system is known for its prominent beautiful ring? Prominent beautiful ring के लिए कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट जाना जाता है? That is Saturn. Okay, Saturn has the prominent beautiful rings around the. What is the name of the instrument used to measure atmospheric pressure? Atmospheric pressure को measure करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? That is barometer. Barometer is used to measure the atmospheric pressure. Okay. Next, which vitamin is produced in our skin when exposed to sunlight? Sunlight में जब हम जाते हैं तो कौन सी विटामिन प्रोड्यूस होती है? That is vitamin D. विटामिन डी प्रोड्यूस होती है when we exposed to the sunlight. इसीलिए कहा जाता है छोटे बच्चों को सनलाइट, मॉर्निंग की सनलाइट में जरूर लेके जाए ताकि उसके अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस हो. Now, who invented the regular optical telescope? टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था? तो आंसर इज हेंस लिपर्शे. गैलीलियो गैलीली वाज द फर्स्ट टू यूज इट सिस्टमैटिकली फॉर एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. हेंस लिपर्स ने बनाया था रेगुलर ऑप्टिकल इन्वेंटर, लेकिन उसको यूज किसने किया था सबसे पहले? दैट इज गैलीलियो गैलीलिया. ठीक है, इन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द टूथ कॉल्ड? हमारे टीथ की जो आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज इनामल. इट इज नोन एज द इनामल. Which device converts chemical energy directly into electrical energy? केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? दैट इज अ बैटरी. बैटरी में केमिकल्स होते हैं, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सबके घर में इन्वर्टर है ना? और उस इन्वर्टर में हर 2 महीने पे उसका पानी खत्म हो जाता है. पानी इसमें डालो तो केमिकल एनर्जी यूज टू directly to convert into the electrical energy. Now, how many players are there on the field in a standard hockey team? ठीक है, स्टैंडर्ड हॉकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? दैट इज 11. Yes, in a standard hockey team that is 11. In standard football team that is also 11. In a standard cricket team that is also 11. In a standard rugby team that is 15. In a basketball that is 5. In a volleyball that is 6. ठीक है, याद रखना, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल 11, रग्बी दैट इज 15. क्लियर? नाउ, which sport is associated with the term dodge? डॉज किस स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है? ये वर्ड किस स्पोर्ट में यूज होता है? तो आंसर इज 2 स्पोर्ट में यूज होता है, दैट इज टेनिस, लॉन टेनिस एंड बैडमिंटन. यस, डॉज के अलावा स्मैश, ड्रॉप, ये भी चीजें यूज होती हैं. तो याद रखिएगा, जितने लोग बैडमिंटन या टेनिस खेलते हैं उनको ये बातें पता होंगी. ठीक है. There's one more thing, बेसबॉल, बेसबॉल खेलते हैं तो बेसबॉल में जैसे क्रिकेट में पीछे विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर होता है, उसी तरह बेसबॉल में भी होता है. उसको क्या कहते हैं? बेसबॉल में जो बैटर होता है उसके पीछे जो, यानी बैटर नहीं कहते हैं, उसको स्ट्राइकर कहते हैं. स्ट्राइकर के पीछे जो बॉल पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? और इसमें अंपायर उसके भी पीछे होता है.
ठीक है, यानी कीपर के भी पीछे, तो उसको द कैचर कहते हैं, कैचर। नाउ हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक मेडल सबसे पहले किस महिला ने जीता था? दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी इन वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहला इंडियन गोल्ड मेडल जीता था। Which country hosted the first ever modern Olympic Games in 1896? 1896 में ओलंपिक्स जो हुए थे, उस ओलंपिक्स को होस्ट करने वाले कंट्री का नाम बताइए। सबसे पहले किस कंट्री में ये होस्ट हुआ था? दैट इज ग्रीस। ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया गया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड क्रिकेट पिच बिटवीन द टू विकेट्स? बिटवीन द टू विकेट जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है क्रिकेट पिच की, उसको वो कितनी होती है? यानी एक स्टंप से लेकर दूसरे स्टंप के बीच जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, वो कितनी होती है? दैट इज 22 yards। 22 yards इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच। ठीक है, तो वो याद रखना कि दैट इज 22 yards। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian sport involves modern day raiders and defenders trying to tag opponents? अब ये किस में यूज होता है? दैट इज द कबड्डी। कबड्डी में रेडर यानी जो कबड्डी 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 बोलते हुए जाता है, और जो उसको क्या कहा जाता है? रेडर। और जो लोग सर्कल बना के उसको पकड़ते हैं, उसको कहा जाता है डिफेंडर। ठीक है, और कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, ये भी याद रखना। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर्स इन अ टीम। Who wrote the famous children book द जंगल बुक? द जंगल बुक आपने देखा होगा, अपने बुक नहीं पढ़ी होगी आपने, तो मोगली को डायरेक्ट देखा होगा। तो मोगली वाली जो जंगल बुक है, उसको किसने लिखा था? सो द आंसर इज रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने इस बुक को लिखा था। ठीक है, मैक्सिमम चीजें जो है वो पहले, फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक बहुत ही फेवरेट है द मार्वल स्टूडियो। मार्वल स्टूडियोज की पहले कॉमिक्स आती थी, यानी एक तरह से बुक्स आती थी। ठीक है, बुक्स जो बुक्स थी, उन बुक्स में जो भी कैरेक्टर्स थे, उनके ऊपर फिर फिल्म बनाई गई है। ठीक है, तो ऐसी द जंगल बुक पहले बुक थी, उसके ऊपर मूवीज या कार्टून बन रहे हैं। ठीक है, नाउ इन चेस विच पीस कैन ओनली मूव डायगनली? चेस में डायगनली कौन सा पीस मूव कर सकता है? वो सिर्फ डायगनली ही मूव कर, दैट इज द बिशप। यानी हिंदी में बोले ऊंट। ऊंट सिर्फ डायगनली यानी तिरछे ही मूव करता है। ठीक है, तो जितने लोग पता है गुड, नहीं पता तो जानो, ऊंट डायगनली मूव करता है, हाथी स्ट्रेट मूव जाता है, स्ट्रेट, चाहे वो दाएं राइट जाए, चाहे लेफ्ट जाए, चाहे सामने जाए, वो क्या जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट जाए, वो डायगनली जा ही नहीं सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी गोज डायगनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल? फुटबॉल की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी? दैट इज, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, दैट इज फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, व्हिच फ्रिक्शनल विजार्डिंग स्कूल डज हैरी पॉटर अटेंड? हाँ, हैरी पॉटर सबने देखे, उस स्कूल का नाम बताओ। दैट इज हार्वर्ड स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजार्डरी। ठीक है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। ठीक है, हाँ, हैरी पॉटर सबने देखा, सारी हैरी पॉटर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब देख ली होगी, स्कूल का नाम ही नहीं पता। हैरी पॉटर भी पहले पहले सिर्फ एक बुक थी, वो भी फिर कन्वर्ट हुई है मूवी में। हु इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? और हैरी पॉटर किसने लिखी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद जरूर रखना। सो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, दैट इज राजस्थान, एंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, दैट इज गोवा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? दैट इज येन। येन इज द करेंसी ऑफ जापान। नाउ विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? अब ये आसान है, ये आपको लोगों को पता है। शिप शिप ऑफ द डेजर्ट किस एनिमल को कहा जाता है? दैट इज कैमल, ऊंट। ऊंट को शिप ऑफ द
डेजर्ट कहा जाता है। नाउ विच लैंग्वेज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट किस लैंग्वेज को लिखा जाता है? दैट इज अरेबिक और उर्दू और पर्शियन। इन तीन लैंग्वेज के कई नेम है, अलग अलग जगहों पे बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू कहा जाता है, यूएई में अरेबिक कहा जाता है। तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। हम लेफ्ट, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये लेफ्ट टू राइट जाता है, बट ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ओके। विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और ये सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द भारत रत्न। तो अगर पूछ लेगा कि सबसे पहले भारत रत्न किस सिविलियन को मिला था, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके। नाउ विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला? स्टेट ऑफ केरला में कौन सा डांस फॉर्म ओरिजिनेट होता है? दैट इज कथकली और मोहिनी आट्टम। क्लियर? नेक्स्ट, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अब ये भी आसान है, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का फुल फॉर्म किसी को पता है? यस, गुड। लिपसिंग से पता लगा कि किसको इसको पता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर करंटली इन इंडिया? दैट इज 8। पहले 7 थी, अब 8 है। ठीक है। नाउ which global organization is responsible for maintaining international peace and security? इंटरनेट पीस एंड सिक्योरिटी करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल? दैट इज यूनाइटेड नेशन, यूएन। यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ राइट एंगल? राइट एंगल में कितनी डिग्री होती है? ये आसान है, दैट इज 90 डिग्री। ओके। राइट एंगल में 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री। ठीक है ना? सो देयर इज अ 50 क्वेश्चंस। अब इसमें से जो आपको आता हो वेरी गुड, नहीं आता हो